जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग सेशन ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 614th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस, जहां पे हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल मार्केट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, कमोडिटीज, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो करेंसीज. So today is Sunday, so we shall do the weekly analysis for this coming week, and let's see what's in store for this week. We have been witnessing some geopolitical tensions building over the last couple of days, so market needs to factor in these new developments happening near the South China Sea between US and China. So we will discuss all these things. सबसे पहले आप सभी का स्वागत है, and I hope you had a good weekend, a meaningful weekend. एंड लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन. कुछ बातें पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बिफोर आई स्टार्ट टुडेज सेशन. दैट नंबर वन, let me tell all of you that the next training is scheduled on August 13th and 14th. So if any of you are interested to join this training, you can WhatsApp and you can get connected with us. And once you register, you will be added in the Telegram group support for a period of 3 months. I'm so sorry, this is the wrong one. Okay, any which ways. So I'll put up the link in the description of this video. You can just follow that link and you can WhatsApp us and you can get connected for the training, which is scheduled on August 13th and 14th for fresh students. Now, the live sessions, guys, as I had told you, few weeks back, that after we complete the 600 live sessions, I will take maybe 10 to 20 more sessions, and we will be winding up with the live sessions, a journey that we started before COVID, before Corona. So we are very much on that track. So live sessions will be closed once I'm back from a little small travel vacation. So I will not be there from tomorrow, and I'll be back on next weekend. So लाइव सेशन इस पूरे वीक में नहीं होंगे. आज का वीकली एनालिसिस हम थोड़ा लंबा करेंगे, डिटेल में करेंगे. मे बी दैट कैन बी यूजफुल फॉर यू गाइज फॉर द कमिंग वीक. एंड वंस आई एम बैक नेक्स्ट वीकेंड से वापस से हम लाइव सेशंस करेंगे, बट गोइंग फॉरवर्ड it will be reduced and then suddenly closed. So all those guys who are interested to be a part of our Telegram group, we will be conducting live sessions on daily basis only for group members. So you can be a part of that group. You can join as a student and you can be a part of that group. I'm trying to make that group more meaningful. So for that I need to cut my time from YouTube. So that is the whole idea. Okay, so anyways, so let's get back to action. कुछ लोग अभी जुड़े हैं. So good evening, namaskar, and let's start today's session. So let me know if my audio visuals are clear or better than last time. So that will help me as a feedback, and we are good to go. So let's start with the global markets right now. So we can see on Friday we had most of the equity markets trading in green. We saw Nifty with a big gap up on Friday, continuing the trend it started on Wednesday, and so yeah, it's perfect. I think this setting is much better. So I have just done some trial and error, so I could figure out ki ye jo screen size and all those things. I think that will be better for the audience. Okay, thank you so much. Okay, so yeah, so let's start with the S&P 500. So here we can see that finally US market S&P 500, it started to continue post the US Fed, and there was a small dip, a small correction for 3 consecutive days, followed by a big reversal bar over here, and it broke all the resistances. So ये जो एक selling area है, I think that is tested on Friday. So it has come at 4130. I think it might do 4190 also, just to test its own 233 moving average, the average that we use. So I think some upside, 4190, maybe 2% more upside should come in the S&P 500. That might come on intraday basis, followed by a selling. That is most likely to happen. So US market trend is bullish, but yeah, 4190, 4200, a psychological barrier over there, plus the 233 moving average combination puts it as a hard resistance to cross in the first attempt. Now, also, it has given multiple breakouts recently, so probably it might try to take some resistance. Some profit booking should come over there, and then
it might start some correction in the sense ki pull back and then maybe continuation and all. सो विल हैव टू सी. अभी ट्रेंड बुलिश है. वीकेंड के जो डेवलपमेंट्स है, थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिकल टेंशन हैं, बट जियो पॉलिटिकल टेंशन से दोस्तों इक्विटी मार्केट्स डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है. इट्स द फॉरेक्स मार्केट विच रिएक्ट्स डायरेक्टली. So I think the equity market still has time, maybe because the markets have been rising for last 3 to 4 sessions consecutively. They might use the political news as a kind of a excuse for some profit booking. So keep an eye on that. If they flash the geopolitical news more and the market starts to come down, so first take it as a technical pullback thing, not as a something really affecting the markets per se. ठीक है, तो एक ये बात जो है हमें ध्यान रखना है. अभी बाजार में किसी भी तरीके की वीकनेस नहीं है. मार्केट इज गोइंग वेरी नाइस. अगर हम वीकली चार्ट की पर्सपेक्टिव की बात करें तो द डे इट ब्रोक 3920, देयर वर सम स्ट्रॉन्ग हर्डल्स ऑन द वे, and then there was a US Fed standing in between us. So after the Fed, it has really taken off in a nice way. So we are coming at that again some resistance zone 4150 से 4200. लेट्स सी. यहाँ पे एक मेरे ख्याल से ये ट्रेडिंग रेंज में डेवलप हो जाएगा वीकली एज पर द वीकली चार्ट्स. आई थिंक 4200 से 4000 के बीच में ये एक नया रेंज अपने आप को स्थापित करेगा. I think 4200 on the upside and 4000 on the lower side. That's going to be a trading range. Also keep an eye on this monthly chart on the left hand side. If you can see on the left hand side, we can see since last 6 months, the 4200 area has acted as a some kind of a pivot, and similar price action was seen over here for several months. The 4500 area held as a kind of a pivot, which was resistance, broken upon, acted as a support, again broken down, acted as a resistance. Similarly, support, broken down, acted as a resistance. So I think this is how the sequence has been. So watch out for this area for any sign of a trouble, exhaustion, profit booking. So that's the update on the US market. S&P 500. Nasdaq की तरफ चलते हैं तो Nasdaq ने जो है बहुत अच्छी बढ़त दी है, and especially after that big earnings day when Microsoft, Google, and all those companies, they posted bumper rallies. I think Nasdaq has come to the next resistance area, which is 13,000 level. Okay, now there is some pattern that I have discovered in these charts so far, which has been working absolutely brilliantly. That is a different type of a technicals, but if you see the black dots and the yellow dots, uh, since the bear market has started, most of the tops and bottoms have been made around that. Okay, so now on Friday we have got that. So watch out for next few days. Be careful. Okay, now one more thing. As per the time cycle, 2nd of August, we had discussed the importance of 2nd of August. From 2nd of August to 8th of August, which is precisely this entire week, market can give some volatile up down movement. Okay, it need not be a trend change kind of a thing. Trend is right now still very much intact, but एक range में sudden sharp these type of moves that should happen actually. और इसके सिर्फ time cycle ही reason नहीं है. The way in which these markets have rallied, okay, they have left lot of gaps. Okay, the price action is not complete. So even if you open the simple intraday chart, you can see that there has not been much of a auction. Generally ये overnight markets में sideways जाते हैं, अगले दिन खुलते हैं, and then they start to rally. So during the market hours in last 4 sessions, there hasn't been much activity, जिसको हम एक ऑक्शन कहते हैं कि बाजार में जो ऑक्शन नहीं हुई है, बाजार में मूवमेंट हुआ है, बुलिशनेस हुआ है, प्राइस ऊपर गया है, ऑक्शन ज्यादा नहीं हुआ है. So because of that, okay, market can show this large swings within a range, maintaining an uptrend. That is very much fine, and the reason can be the geopolitical news. So all these things will happen because the time cycle for next 7 sessions, you can say from 2nd to 8th, is little bit fluctuation sort of a band. So ऐसे जोन में दोस्तों ये होता है कि मार्केट टेंड्स टू गिव लॉट ऑफ ट्रैपिंग मूव्स. तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो आफ्टर द स्टॉप लॉसेस आर हिट, हो सकता है मार्केट नीचे गिर जाए, एंड वंस इट कम्स एट सपोर्ट, फर्स्ट इट विल ब्रेक दैट सपोर्ट, एंड हो सकता है कि मार्केट ऊपर चला जाए. सो वॉच आउट फॉर दिस एंटायर वीक. इस वीक में बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है आपको मिल सकता है इफ यू आर प्लान्ड
and if you know how the price action things work, so there is going to be lot of actionable trading opportunities across the board. This brings us opportunities as well as areas where we can commit mistake. So कुछ traders को ऐसे जो टाइम जोन होते हैं वो उन्हें बहुत ही पसंद आते हैं. ओके, सो पर्टिकुलरली आई लाइक exactly this type of market activity. But some guys they feel very much challenged to tackle these type of market activity or a time cycle. So अगर आपको नहीं जमता है मार्केट में, so take a break for 1 week, okay, but do not get chopped out in this volatile market regime which should happen from 2nd August to 8th August. Okay, so Nasdaq की हम बात कर रहे थे. So Nasdaq पे resistance zone है. I think some more upside should come. 13,500 etc can come, or specifically 13,250 etc can come. Dow Jones की बात करें तो Dow Jones is again reaching its own 233 moving average placed at 33,250. So I think that will be tested again. And अगर हम small cap index की बात करें उनके, तो that is also going good. So that is also fine. Now let's talk about German DAX and the other equity markets. So German DAX is again coming at resistance. Similarly, अगर हम French markets की बात करें तो French markets has done well, but it has met its own resistance of 233 moving average. So again इसमें भी problems जो है हमें देखने को मिलेगा. Now what is more interesting is the Hong Kong market, because as the tensions build in the US and China, and if you recall, we had discussed that Hong Kong market is simply doing nothing and this market is finished. China ने इस मार्केट को खत्म कर दिया है. This is a running triangle. This is very bearish structure. And I think ये जो है अपने मार्च बॉटम को ये बंदा जो है क्रैक करने वाला है. So I think the Hang Seng market is going to tank towards 16,000 in coming days and weeks. So this index will particularly it can drag the other emerging markets also. And that can be some bearish news over the next coming week. uh, let's have a look at the currencies. यूएस डॉलर की बात करें तो यूएस डॉलर पूरा एक्शन एक्चुअली यूएस डॉलर बेस हो रहा है. सो फ्राइडे के दिन भी यूएस डॉलर इंट्राडे लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी वाज सीन. इट वेंट अप, इट केम डाउन. इवनिंग सेशन में जो है अगेन इट वेंट अप and then it came down. So there were a lot of moves. So as of now the US dollar is certainly bearish, I would say. Okay, so the US dollar has broken below this strong support area. ओके अगर मैं एक्चुअल यूएस डॉलर की बात करूं तो उसका चार्ट है ये, द डिक्सी स्पॉट. सो वी कैन सी दैट इट हैज ब्रोकन बिलो द रीसेंट स्विंग सपोर्ट एरिया which is 106, and so that's why it can go little lower. However, as of now I think because of the building geopolitical tensions, I think US dollar might drag little bit, but somewhere it will bounce back. Okay, somewhere it will bounce back, and probably a good area can be 105, 104. So this is the last consolidation breakout, and so somewhere near 104, 105 it can very well come here a little more downside, and then it will shoot up. So I'm of the belief that the dollar has not yet bottom, not yet topped, sorry, not yet topped, and it can again go higher. Okay, so this entire corrective move looks very much similar to this move. So as of now I am not very bearish on dollar, neither very bullish, but yes, I see a possibility that it can go maybe 1% lower, but again it can bounce 5 to 6% higher, and then finally make the top for US dollar somewhere around 112, 111, 112. That should be the top for US dollar in coming 1 month. So all these things will change if we start to trade below 104. I think below 104 it's done for dollar. I think this will remain as a top in that case, and we would have started a bearish down cycle for medium and long term in the US dollar. Now the most interesting currency right now will be the USD JPY, because the way it has broken on Thursday followed by Friday is something which is very very disturbing in nature. Why disturbing in nature? दो बातें. पहली बात कि एक तो हम खुद JPY INR पे हम शॉर्ट हैं और अभी उसमें जो है हमको लॉस है, एंड JPY INR has shot up by almost 1 rupee 1 rupee 20 पैसे.
but that is not a problem as such, because we gain in the euro, we gain in the pound, and it's totally balanced off. So कोई वहां पे ऐसे टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है. The point is, the way USD JPY has cracked, it generally happens when you have put in a some meaningful long term top. Okay, now the problem is, if this is a top in the USD JPY, then in the medium term it is not good for the equity markets. Abhi teji chalegi, but future mein, like in the medium term, if the USD JPY continues to go in this way, that will totally change the क्या कहें मैक्रोज एंड जो डेवलपमेंट हमें जियोपॉलिटिकल दिख रहा है, ये फिर बहुत ही अजीब कुछ सिचुएशन डेवलप हो रही है. सो व्हाट आई थिंक इज दैट दिस मूव इज लिटिल बिट शेडी. ओके, आई वुड से ये जो मूव है ये थोड़ा सा मुझे फिशी कुछ लग रहा है. एंड आने वाले इस वीक में इस पे हमें पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी. क्लैरिटी इन द सेंस दैट इफ दिस मूव एंड्स अप being a false move, then I think there is some huge upside coming in the USD JPY. Okay, so and I don't know फिर उसका repercussions क्या होगा, क्योंकि फिर पूरा मैक्रोस ही चेंज हो जाएगा. सो अभी हम इसे थोड़ा सा ज़्यादा रीड नहीं करेंगे. लेट्स गिव 3 to 5 days, ये वीक हम देते हैं, एंड देन वी विल सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस, बिकॉज इन दीज काइंड ऑफ मार्केट्स जल्दबाजी में कोई बड़ा व्यू रीड नहीं करना चाहिए. गिव some time. Okay, so that's the thing. Now USD JPY, yes, till we do not cross the 135, which is the psychological level, तब तक जो है प्रेशर नीचे में है. सपोर्ट अच्छा मिल चुका है. 65 डे मूविंग एवरेज को इसने वापस से रीटेस्ट किया है आफ्टर ऑलमोस्ट 6 months. सो दैट इज समथिंग विच इज नाइस. एक अच्छा एक पुल बैक करेक्शन हो चुका है, बट एज आई सेड, दैट इज nice if we can start to rally. So this is the monthly chart of USD JPY, and this is at a support. So the 132 area, that was the last top. So it's at support, but it has also reacted from a major resistance. So this is the long term chart. Okay, now I think is that the USD JPY, if sustains here, why? Because this is the top which was made 20 years back. So if you think from this perspective, it is the 20-year breakout retest possibility. Okay, and the Chinese, they are doing a lot of masti over there. So Japanese are proxy Americans. So they would definitely like to shoot the Japanese yen much higher towards this 156 level, which nobody is talking about in the macro world right now. So let's see अगर ये मेरा prediction correct होता है कि नहीं होता है. I think 130 to 130, I will watch this area. And if the next month onwards, after 1st of August, if we hold this area and if we start to shoot high, my target will be much higher. My target will be 156, 149, 156 in the on the USD JPY. So what would that mean? That would mean your JPY INR falling flat to 55 rupees. That would mean the US dollar is again shooting higher towards 112, and that would mean the euro and the USD hitting new lows. That would mean BTC and Ethereum going back to the previous lows we have seen in last 1 month. And that would also mean the equity markets can behave in a very bizarre manner, where it can, I don't know whether it will be bullish or bearish, but I know that it will give you such a swing, like huge swings, tsunami type of swings there, and yet maintaining no trend. सो लेट्स सी. आने वाला एक हफ्ता बहुत ही क्रूशल है. अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट देयर इन दिस वीक, नहीं तो हम रोज इवेल्युएट करते. सो लेट्स सी क्या होता है. ओके, नाउ लेट्स वेरी क्विकली गो टू द फॉरेक्स चार्ट ऑफ yeah. So let's have a check on the forex market, NSC forex futures, and then we'll again come back to the equity market. So USDINR as of now bearish है. और फ्राइडे मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि हमारा जो इनिशियल प्लान था 79.45 पे बाय करने का, उसे ड्रॉप करते हैं. एंड आई वुड लाइक टू अवॉइड USDINR एज ऑफ नाउ. हाँ, 79.2 पे अगर मुझे बिड मिलता है, यहाँ पे मुझे अगर INR मिलता है, तो मैं एक बार चांस लूंगा. आई विल बाय 79.2 with a stop loss of 78.8.
फॉर अ रीटेस्ट ऑफ अगेन 80 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे मैं एक मेंशन करता हूँ कि मुझे अगर यूएसडी आईएनआर, ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, सो दीज आर ऑल फ्यूचर्स level. So 79.2 is a buying area. Stop loss will be 78.8 for a target of 80 एंड 80.20, यानी 1 रुपए की लगभग टारगेट होगी, 40-50 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। तो ये एक ट्रेड हम देख रहे हैं यूएसडी आईएनआर में इस वीक के लिए। इस व्यू को आप जो है ऑप्शंस मार्केट के थ्रू भी आप ट्रेड कर सकते हो। आप शॉर्ट ट्रायंगल, शॉर्ट स्ट्रैडल वैसे कर सकते हो, फ्यूचर्स ट्रेडर हो तो आप वैसे कर सकते हो। यूटिलाइज द व्यू बिकॉज अवर व्यू मोस्ट ऑफ द टाइम रिमेन sacrosanct in the forex market. Now लेट्स गो टुवर्ड्स द यूरो आईएनआर एंड द जेपीवाई। सो बहुत ही शानदार ट्रेड वापस से फ्राइडे को जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं जो ट्रेड करते हैं, आई थिंक यू कैन वाउच फॉर दैट। फ्राइडे जो है हमें वापस से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिला 81.78, इट वेंट ऑल द वे टिल 81.14। सो अगेन जो मैंने थर्सडे रात को जो आपको शॉर्टिंग लेवल दिया था, ब्रिलियंट परफेक्ट तरीके से यहाँ पे काम हुआ है। टॉप पे शॉर्ट, यहाँ पे जो है आप कवर करो, exit. Now we can see the euro has made a inside bar. So what does it mean? It means that the next time we go below 81, that is game over bulls for euro INR. So as 81 के नीचे, it's definitely new lows with some intermittent supports coming there. Above 82, it might again test your patience towards 82.35. Okay, so levels में कुछ इस तरीके से लिखता हूँ कि यूरो आईएनआर पे रफली रफली जब तक हम से 82 को ब्रेक नहीं करते, यानी इसके ऊपर जब तक हम नहीं जाते हैं, द ट्रेंड इज बेरिश। वी हैव हिट फर्स्ट टारगेट एट 81 रुपीज, राउंड फिगर में लिख रहा हूँ, एंड बिलो 81 यू कैन सी ऑल दीज लेवल्स विल कम 80.5, then you have 80 which is the psychological number parity level, और उसके नीचे 79.5. okay, now what my assessment is, till we do not take out 82.5, the euro is sell on rise counter, and I am expecting कि ये parity को भी एक और बार challenge करेगा, और दूसरी बार parity जो है थोड़ा और significant तरीके से break होगा, thereby bringing the euro INR towards a 79.5 level. अबव 82.5 डोंट टेक एनी चांस, एक बार जो है आप निकाल दीजिए कोई भी शॉर्ट वगैरह अगर क्रिएट करते हो तो, बिकॉज सम जियोपॉलिटिकल टेंशंस आर डेफिनेटली गोइंग टू हैपन विच इज डायरेक्टली लिंक टू द यूएस डॉलर। ओके, सो उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज डॉलर को मिले या ना मिले, यूरो को जरूर मिलेगा, क्योंकि सारा ट्रेड जो है डॉलर का यूरो में होता है, यानी डॉलर से व्यू मिलता है, ट्रेड होता है यूरो में। सो अभी तक डॉलर तेजी में था तो लोग यूरो को शॉर्ट करते थे, अंडरस्टैंडिंग दैट वे। सो इस चीज़ का जो है आप ध्यान दीजिए, लेवल्स मैं आपके सामने रख चुका हूँ। जीबीपी आईएनआर की तरफ चलते हैं। सो ब्रिटिश पाउंड में अगेन बहुत ही ब्रिलियंट ट्रेड था फ्राइडे के दिन, अगेन 97.5 पे शॉर्टिंग था, एंड एज यू कैन सी इट ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली लोअर। सो दिस वाज द शॉर्टिंग लेवल एंड अगेन इट हैज गॉन डाउन। नाउ इस वीक में हम किस तरीके से तैयारी करेंगे, सेम लेवल्स हैं दोस्तों, 97.75 तक की शॉर्टिंग रेंज है जीबीपी आईएनआर में, 97.75 तक की शॉर्टिंग रेंज है। 98 के ऊपर मैं इसे नहीं देख रहा हूं एज ऑफ नाउ, और नीचे में 96.5 का सपोर्ट एरिया है। सो जीबीपी आईएनआर का एक ट्रेडेबल रेंज विद अ बेरिश बायस will be say 97.75 on the upside and 96.5 on the lower side. This is the range where it wants to trade for now. Below 96.5, game over bulls for pound, and then we start all the way going step by step at lower levels. So 96.5 के नीचे 1 रुपए की कंफर्म ड्रॉप होगी 95.5, और ये आखिरी लेवल है। 95.5 के नीचे कोई चांस ही नहीं है। मैं स्ट्रेट अवे 92.5 का एक पोजिशनल लेवल लेके चल रहा हूं, जो मैं पहले भी दे चुका हूं। सो रफली I would say I'm expecting GBP INR to trade somewhere below 98 से लेके 96 as a practical trading range, and below 95.5 we are headed towards 92. So इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं मोटा मोटा GBP INR को। तीन जो है मेन लेवल्स हैं 98, 96 और 92। आई डोंट थिंक दीज लेवल्स आर गोइंग टू चेंज। आखिरी करेंसी पेयर की तरफ चलते हैं, जेपीवाई आईएनआर, एंड देन विल कम बैक टू एनएससी। सो जेपीवाई आईएनआर को जो है फ्राइडे के दिन काफ़ी बूस्ट मिला,
बट वी आर स्टिल होल्डिंग दी शॉर्ट्स. इंट्राडे इसमें जो है एक अच्छी हमें विक देखने को मिला है, काफ़ी बड़ी विक है ये. देयर वाज लॉट ऑफ सेलिंग विच केम फ्रॉम द गैप एरिया. सो 60.20 याद होगा, ये लेवल भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है ये गैप एरिया है, अनफिल्ड है. इसे फिल करके सम रिजेक्शन शुड कम विच हैज हैपेंड. नाउ फॉर द कमिंग वीक, remember one thing that based on the simple price action chart, till we are not going below 59.6, ओके, और 59.5 रफली, जेपीवाई आईएनआर जो है ये हमें थोड़ा तकलीफ दे सकता है. एंड इट माइट अगेन ट्रेड इन द रेंज ऑफ 60.4 और 60.5. सो फर्स्ट ट्रेडिंग रेंज फॉर दिस वीक इज 59.5 ऑन द लोअर साइड, ऊपर में 60.5. दिस इज 1 rupee रेंज where volatility can happen. Okay, zigzag can happen. So you can trade in between this range. Below 59.5 it is all game over and we are starting all the way towards new lows. So बीच में जो लेवल्स हैं कुछ हम उस लेवल्स को मेंशन कर देंगे, जैसे 59.5 के नीचे आपको 58.5 एक ये लेवल है, और इसके नीचे सीधे 57.5 एंड द लोअर न्यू लोज विल कम. सो आई थिंक that's how the market is going to work. Watch out for this area. Let's see कल सुबह कहाँ जापानीज येन खुलता है, यूरो पाउंड कहाँ खुलते हैं. बट आई थिंक जो भी मैं एक जजमेंट लेके लेवल्स दे रहा हूँ, आई थिंक दैट लेवल विल प्रीटी मच होल्ड. नाउ अगर किसी कारणवश अगर कोई यूएस चाइना में कुछ भी अगर हो जाता है सडनली, सो प्लीज कीप इन माइंड द फॉरेक्स मार्केट विल रिएक्ट फर्स्ट. सो ट्राई टू कीप एज लो positions as possible. Okay, so बहुत ज़्यादा positions heavy नहीं करना है, because there is a chance for volatility. So that's all on the forex front. Now we can go back to the our regular markets, and here let's go towards the commodities market. So crude oil की बात करेंगे. So crude oil में फ्राइडे के दिन काफ़ी दिलचस्प था. Because of the USDINR fluctuations, the views are little conflicting in nature. But अगर हम सीधे MCX की बात करें तो क्रूड पे the trend is still pretty much, I would say, range bound kind of move. But watch out for this 8100 area जो फ्राइडे का हाई है आपका. सो 81 से 8200 ये 200 पॉइंट रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है क्रूड के लिए. और नीचे में 7500 से 7600 एक मेजर सपोर्ट है. सो इस वीक में क्रूड का कोई भी बायस नहीं है. आई मीन इट हैज क्लोज्ड नाइदर एट रेजिस्टेंस नॉर एट सपोर्ट. सो देयर इज नो बायस गोइंग इनटू द वीक. इट्स ऑल न्यूट्रल, कहीं भी जा सकता है. मैं इसमें बेटर ये अप्रोच होगा कि या तो अगर ये इस बाइंग रेंज में आएगा तो बाय करेंगे, या पहले शॉर्टिंग रेंज में आएगा तो हम इसे शॉर्ट करेंगे. बीच से कहीं भी ये जा सकता है. इट्स टोटल 50-50 प्रोबेबिलिटी. So just remember the bigger range. On the downside, you have 7500 as a major support. On the upside, you have 8100 to let's say 8200 as a major resistance. I don't think कि ये दोनों ही साइड ब्रेक होंगे unless कुछ जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आए. तो आइदर साइड पे प्ले करना चाहिए. 75 पे बाय, 82 पे सेल, या 82 पे शॉर्ट, या 81 के रेंज में शॉर्ट एंड देन 75 पे बुक. इस तरीके से बीच के कुछ जो important levels हैं, if I have to mention the important levels in between, they will be your 7900 followed by 7750. तो क्रूड में कुछ इस तरीके से हमारे लेवल्स आते हैं. 8200 as a major resistance, then you have 7900 as a important trading pivot, then 7700 followed by major level of 7500. So trade using these levels. I don't see any major trend coming up unless there's a geopolitical news. If we talk simply from the basis of a trend line perspective, this was the first attempt to move higher which got rejected, and now we are successfully somehow trying to hold above that trend line. So you can say that it is trying to backtest the trend line breakout thing, as well as it is trying to check the demand zone over here, which is also the previous demand zones. So that is why the main bias is on upside, but from a deeper level of 7500 towards that resistance zone of 8200. ये हमारा कुछ लॉजिक है इसमें, इसको इस तरीके से लेने का. ठीक है. अब अगर ये इस कैंडल के ऊपर जाता है, देन एज यू कैन सी पहला कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो चुका है.
पहला फेलियर यहाँ पे हो चुका है, ये दूसरी बार है, एंड वंस वी टेक आउट दिस, अगला आपको जो है 85 और 8600 का रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सो क्रूड आई थिंक पोजिशनली स्पीकिंग दो सिचुएशन पॉसिबल है। नंबर वन, मे बी इट्स मेकिंग अ बेयर फ्लैग आउट ऑफ दिस। ओके, सो हो सकता है कि ये जो है पंक्चर करके एक और न्यू न्यू लो बनाए। दैट इज वाई 7500 के नीचे कोई भी लॉन्ग्स को नहीं रखना है। दैट इज आखिरी ये, एंड वी माइट एंड अप सीइंग दिस सॉर्ट ऑफ a final leg on the lower side, which may be complete the downtrend thing, flushing this one, and then starting a big rally, ये भी पॉसिबल है। तो ऐसा अगर कुछ होगा तो वापस से इसे 7500 को टेस्ट करना होगा। अगर इसने 7500 को टेस्ट किया तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या इसका टारगेट है ये। तो इन दैट केस इस बॉटम पे जब ये अगर आएगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। यही लॉजिक मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर ये ऐसे ब्रेक करता है और ऊपर आता है तो इस लेवल पे हम यहाँ बाय करेंगे, जो कि हमने यहाँ एडवाइस किया 76, एंड देन द टारगेट विल अगेन रिमेन लाइक 84, जिसमें से हम अभी तक 82 तक 81 तक जा चुके हैं। ठीक है, सो क्रूड बहुत ही स्मार्ट तरीके से दोस्तों प्ले कर रहा है, स्पेशली ये जुलाई महीने से जो है ना, इफ यू सी इट इज ट्रेडिंग इन अ नॉट अ नैरो रेंज आई वुड से, बट yeah, the way it is moving, it is acting very very smart. So be careful, play only at the extreme levels, I think that will make more sense। 75 के नीचे कोई भी लॉन्ग्स मत रखना, काफी रिस्की हो सकता है। कॉपर की बात करें तो काफी बड़ा करेक्शन जो है कॉपर में, सॉरी कॉपर कह रहा हूँ मैं, नेचुरल गैस की बात करें तो देर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट करेक्शन दैट हैज हैपेंड। एज ऑफ नाउ इट इज डिफेंडिंग द प्रीवियस डे हाइज। सो जब तक ये बिहेवियर है इट विल रिमेन बेरिश, एंड आई थिंक इट माइट टेस्ट 600 लेवल्स एज वेल, एंड जब तक ये बिहेवियर है इट विल रिमेन बेरिश। मेरा कोई व्यू या कोई ट्रेड एडवाइस जीरो, मेरी तरफ से एनजी में कुछ नहीं है। बी एक्सट्रीमली केयरफुल, वापस से जियोपॉलिटिकल टेंशंस होंगे तो ये एनजी जो है वापस से इट कैन डू एनीथिंग बेसिकली। सो आई थिंक बेस्ट होगा इसे अवॉइड करना। कॉपर की बात करें तो 640 के ऊपर तेजी की बात हमने कही थी, एंड 657 का लेवल जो है मुझे दिखाई दे रहा है। सो दैट इज अगेन अ करेक्ट एनालिसिस ऑन द कॉपर फ्रंट। 640 642 के ऊपर बुलिश है। आई थिंक दिस विल कंटिन्यू। जो टारगेट्स हमने दिए थे कि 665 675 एंड ऑल, आई थिंक दोस टारगेट्स विल कम इन कॉपर। नाउ बिलो 640 ऑल बेट्स आर ऑफ। सो कॉपर में अगर आप लॉन्ग है तो 640 के नीचे कोई भी लॉन्ग रखना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड सिल्वर पे हम तेजी में थे, बट कोई एक्शनेबल ट्रेड अभी तक मिला नहीं है। सो गोल्ड में आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको इस वीक में गोल्ड अगर 50,800 से 50,500 के रेंज में मिलता है, ओके, इफ यू सी गोल्ड इन द रेंज ऑफ दिस, यानी ये जो ब्रेकआउट हुआ था, अगर गोल्ड में आपको इसकी पुल बैक यहाँ मिलती है 50,500 600 700 इस रेंज में, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक बढ़िया सेटअप जो है यहाँ पे एक क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं, बट वी शुड कीप 50,000 के नीचे का एज अ स्टॉप लॉस। सो आने दो इसे, अगर करेक्शन करेगा तो बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस, मेजर स्टॉप लॉस अगर रखना चाहते हो तो इट विल बी बॉटम ऑफ दिस कैंडल फॉर अगेन अ कंटिन्यूएशन मूव टुवर्ड्स 52.5 और मे बी 53। तो इस चीज़ पे जो है हमें ध्यान देना होगा इन दी गोल्ड मार्केट। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वुड लाइक टू से फ्रॉम अ गोल्ड मार्केट परस्पेक्टिव, अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, इज दैट यू नो द वे मैक्रोज आर सेटिंग अप। सिचुएशन कुछ ऐसी है दोस्तों कि एक जगह जहां बात हो रही है इन्फ्लेशन की, कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है और उसका डेटा भी वही सजेस्ट कर रहा है, गोल्ड इज अ नेचुरल हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, एंड वी हैव सीन कि ऑल दिस वाइल व्हेन इन्फ्लेशन वाज राइजिंग, ओके, गोल्ड हैज डन नथिंग। तो दो दो बातें निकल के आती हैं। पहली बात कि क्या ये इन्फ्लेशन सही में है या क्या चक्कर क्या है। ठीक है, अगर ये इन्फ्लेशन सही में है तो वाई गोल्ड इज नॉट रनिंग, गोल्ड हैज डन नथिंग लिटरली। ओके, मार्च से लेके आप देख लीजिए 6 महीने हो गए हैं, और इसी 6 महीने में जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन का वो हुआ है, हालांकि वो पहले से हो रहा था। सो एक तो ये इशू है कि वाई द गोल्ड इज नॉट रिएक्टिंग। दूसरी बात है कि गोल्ड इज ऑल्सो अ सेफ हेवन बाइंग करेंसी यू कैन से। So despite the Russia war, Ukraine and all those things, gold is still to react. So something is cooking with gold. Okay, something is definitely happening with gold. या तो इसे purposely जो है suppress करके रखा जा रहा है for a major third leg towards 60,000, because the way, if I just see a simple chart of gold, what I feel is
that after making this full and final bottom, this was the first move. And again, look at the way, some couple of big moves happened and then it stayed silent, and then again there was second round, again a similar type of activity here, then the bigger third one, again a similar type of activity. So I think it is going to repeat these fractal for a couple of more months. But the way this is shaping up, or you can say this is one, this is two, and then the third will come, which will like on MCX it might take towards 60,000, big new high, third is type ka. So I can sense that something is like being cooked up, and this candle bottom which was made, that is again a double bottom structure, just like we had this, just like we had this, just like we had this, right? So the characteristics are totally there, geopolitical things are happening, right? So again, जैसा मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैक्रोज है बॉस, एकदम बेरिश मत हो जाओ, एकदम बुलिश मत हो, क्योंकि दोनों ही कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट इज मूविंग इन वेव्स। एंड अगर हमने जैसे लास्ट 6 महीना 8 महीना पहले हमने एनजी को स्पॉट किया, जब वो 200, आई थिंक 1 साल के ऊपर हो चुका है, जब वो 200 का था, वहां से एनजी खेलते खेलते हम आ गए 750 पे, राइट? सो आई थिंक वन बाय वन a commodity or an asset or a script is setting up for some crazy moves. So if we can identify some of those scripts, I think it's going to be a great trading opportunity. So watch out for gold in coming weeks. I think the 49,500 level that we have put in, that remains a line in the sand. अगर हम इसे प्रोटेक्ट करते हैं और इस फ्रैक्टल को लेके चलते हैं, तो probably we are heading towards 60,000 as a major target on the upside. So you can think of buying gold ETF also, और यू कैन प्ले द बिगर मूव्स, यानी बिगर मूव्स यानी बाय ऑन डिप्स करो, फिर प्रॉफिट बुक करो, अगेन एक किसी करेक्शन पे बाय ऑन डिप्स करो, प्ले द बिगर ट्रेंड इन हैंड, ठीक है? सो दैट्स अ बिग व्यू ऑन द गोल्ड. नाउ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड इज सिल्वर. सिल्वर पे हमने 56,000 के ऊपर की बुलिशनेस की बात कही थी. वी हैड एक्सप्लेन दैट्स व्हाई सिल्वर इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड सिल्वर is at a long time support, and you can see on Friday, Thursday, boom, boom, boom. So with a gap up action. Now ये गैप जो है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये फिल होगा. सो सिल्वर पे कोई भी गिरावट आता है, कोई भी करेक्शन अगर हमें 57,000 तक भी मिला, तो सिल्वर को आप बाय कीजिए. नीचे का जो भी बॉटम बना है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस इस समय लगाना होगा, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है, जिस तरीके से देश में कोई विकल्प नहीं है. सो यू नीड टू टेक दैट थिंग इनटू कंसिडरेशन एंड बाय नियर 57,000. कोई भी एक थोड़ा अच्छा करेक्शन आ जाए तो, एंड देन टारगेट्स आर ऑल ओपन. 62,000 64,000 बहुत बड़े टारगेट्स में दे चुका हूँ. सो दैट्स द अपडेट कमिंग ऑन सिल्वर. सो कमोडिटी सेक्शन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं. वेरी क्विकली एक बार बिटकॉइन इथेरियम चेक करते हैं. सो इथेरियम एंड बिटकॉइन, सो अगेन दीज गाइज आर मूविंग very slowly, and Bitcoin has finally tested the 65-day moving average, almost till 25,000 yet again. सो नाउ बिटकॉइन पे दोस्तों, जब तक ये बिटकॉइन 25,000 के ऊपर नहीं क्लोज करता है, आई डोंट थिंक बिटकॉइन इज बेरिश. बिटकॉइन जो है वल्नरेबल है और वापस से 20,000 की गिरावट हो सकती है. 25 के ऊपर इट इज ऑल ओपन टिल 28 एंड 29. इथेरियम की बात करें तो 1700 पे बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस बिल्ड हो रहा है. This was the last support which was broken down. Again, it is acting as a resistance. It's making a flag pattern. Now, this is bullish. Okay, so watch out for Ethereum. But यहाँ पे कैच भी है, और कैच ये है कि अगर श्रीमान इथेरियम अगर 1800 के ऊपर नहीं जाते हैं, अगर 1820 के ऊपर इथेरियम नहीं जाता है, तो इथेरियम विल बी अगेन sold back to 1280. So there is a big range of 500 600 points. Above 1820 it's all bullish till 2300. Below 1820 it's all bearish till 1280. That is the view coming on Ethereum. So with this I wind up with all the macro stuff. अब हम बहुत क्विकली शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, जो कि बहुत ही सिंपल है, बट कुछ कॉन्टेक्चुअल बातें जो है हम आपके सामने रख देते हैं. काफ़ी लोग जो हैं इस समय भी नए जुड़े हैं, सो वेलकम. Yeah. So what is the contextual understanding that most of the months in last 2 years, 2.5 years, we have seen Nifty clocking 11% monthly range. So I just highlighted these moves, so you can see most of the moves are 11%. Okay. Second, they are of 8%,
and only 2 months are there of 13% or greater than 13. So statistically, we are in the top percentile of a move. Now that move can be up or down. हम एक ATR की बात कर रहे हैं, एक move की बात कर रहे हैं. So if that logic is correct, we can move 2% more higher, thereby tallying with the highest move which we have seen in the last 2 years. So that would take Nifty towards 17,700. So keep an eye on this statistic. These are maths, like ये numbers हैं. So they generally don't change unless there is a some underlying change in the market. Okay, so अभी मैंने क्या कहा, इसका मतलब ये है दोस्तों कि मोस्ट ऑफ द बिग कैंडल्स दे आर ऑफ 11% रेंज, जो कि बाजार में थोड़ा और 100 पॉइंट निफ्टी जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा. सो वी आर डन विद दिस. इसके नीचे के जो मूव्स हैं, जो एवरेज मूव्स हैं, ये 8.33 रहे हैं. सो ये तो हो चुका है. अब इसके ऊपर केवल 2 ही बार हमने 13% या 13.5% टेस्ट किया है, जो कि 2% एडिशनल है. ठीक है, तो अगर 2% आप फ्राइडे की क्लोजिंग से आप ऐड कर लो तो लगभग ये 17,500-600 आएगा. तो हम रफली 17,700 एक कंसिडर करते हैं, विच शुड बी अ सीलिंग फॉर दिस मार्केट इफ दीज फैक्ट्स आर करेक्ट. नाउ व्हाई आई एम सेइंग फैक्ट्स, बिकॉज ये हमारे सामने मैथ्स के फॉर्म में है, तो देयर इज नो सब्जेक्टिविटी इन दिस. सो क्या जरूरी है कि मार्केट इन्हीं नंबर्स के हिसाब से चलेगा? ऐसा भी नहीं है. मार्केट में अगर कोई नई चीज आई है जो मार्केट को पता है, हमें नहीं पता है, तो ये सबसे पहले डेटा चेंज होता है, सबसे पहले ये नंबर्स चेंज होंगे. ओके, सो जैसे से फॉर एग्जांपल ये 23% का कैंडल है. आपको पूरे निफ्टी की हिस्ट्री में ऐसे मात्र कुछ ही कैंडल दिखेंगे जो 23% के मंथली कैंडल है. सो ये चीज कब होगा? ये चीज तब होगा जब मार्केट में कोई नया इंफॉर्मेशन आया है. ठीक है, एंड यू कैन सी दिस वाज द बॉटम ऑफ कोविड. सो मार्केट ने सेंस कर लिया कि भैया कोई कोविड वोविड का टेंशन बाजार रिलेटेड नहीं है, जो ये हेल्थ रिलेटेड है, और ये जो 36% की डिक्लाइन है ये अनजस्टिफाइड है. मार्केट इज वेरी वेरी लॉन्ग टर्म वाइज valued and we should buy. So this started the bull run. So this is the reason why I am explaining this thing कि जज्बात में आके बड़े बुलिश या बड़े बेरिश उसमें नहीं होना है. हमें थोड़ा सा मैथ्स, स्टेटिस्टिक्स और प्राइस एक्शन, टेक्निकल्स, इन सब के कॉम्बिनेशन में चलना है. नहीं तो बहुत आसान होता है कि जब आप एक ATR के हाईएस्ट वैल्यू पे हो तो आप जो हो वहां पे बुलिश बन जाओगे, जबकि वही प्रिसाइसली जगह है बेरिश होने का, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो ये कॉन्टेक्चुअल चीज के लिए मैंने इसको ये जो है यहाँ पे हाईलाइट किया था. नाउ लेट्स कम टू दी चार्ट्स एंड लेवल्स. सो वीकली चार्ट अगर हम देखें तो बहुत सिंपल सी बात ये है कि इट हैज़ बीन गोइंग वेरी नाइस, और काफ़ी मोमेंटम आया है पिछले लास्ट वीक में, एंड इमीडिएटली कुछ ट्रबल एरियाज हैं. तो हम उस ट्रबल एरियाज की बात करते हैं. सबसे पहले इफ वी लुक एट द कॉम्प्लिकेटेड चार्ट, देन निफ्टी में अगर एक और बुलिश कैंडल वीकली पे बनता है, I think 17,460 will be next major resistance. It is the 78% Fibonacci retracement, okay, of the, I think, of the previous one. Now, on the higher side, 17,475 should be the ceiling, and on the lower side, 16,925 should be the support. Now, let me just write it down. Okay, on the higher side, we are talking about 17,475 as a major resistance. On the lower side, we are talking about 16,925 as the major support. So it's roughly, you can say, 500 550 points of zone, which I think Nifty can move. Nifty can hit even this and even this. I won't be surprised अगर दोनों ही इस वीक में हिट हो. Now, इससे ये बोलने से किसी को क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा. तो हमें यहाँ पे कुछ एक्शनेबल बातें करनी पड़ेंगी. सो एक्शनेबल बातें क्या है कि इस वीक का दोस्तों जो मॉब लेवल है, जो इस वीक का मॉब लेवल, यानी वो फ्राइडे वाला मॉब नहीं, मॉब लेवल यानी मेक और ब्रेक लेवल, वो ये है कि आपका 17,060, ये आपका मॉब लेवल है. अबव 17,060 you have first target of 17,280, second target of 17,480. Above 480 only market can continue to move higher. In that case, 17,680. Now this is a mother of all level, very very crucial level, both technical wise as well as statistic wise. Okay, so watch out for some exhaustion coming near 480. I think that's a very super level jahan pe some mean reversion traders will start to attack the market. So watch out this.
एंड 17,060 वाज वेरी वेरी क्रूशियल. अब आप कहोगे कि आपने 16,925 का लोअर रेंज दिया है, तो 925 और ये 60 इसमें तो कोई ज्यादा वो नहीं है, तो 925 को क्यों हम कंसिडर करें. तो बात ये है कि अगर ऊपर जाके ऊपर की चढ़ान के बाद नीचे की ढलान में ये लेवल कटता है, 1760 एक्सेट्रा, तो दैट इज द फर्स्ट वार्निंग बेल. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट वार्निंग बेल, एंड यू शुड स्टार्ट एग्जिटिंग योर जो भी स्टॉक्स जिनके चार्ट्स खराब हो चुके हैं, जिनके स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं, सो बेसिकली दैट इज द फर्स्ट वार्निंग बेल. तो इसके नीचे लॉन्ग्स को कैरी नहीं करना है. ओके, एंड शॉर्ट नहीं जाना है, थोड़ा वेट करना है, एंड देन इफ इट स्टार्ट्स टू डेवलप दिस सॉर्ट ऑफ रेंज, तो यही लेवल जो है रेजिस्टेंस का काम करेंगे. सो यू माइट एंड अप शॉर्टिंग समवेयर इन बिटवीन दिस जोन विद 480 एज अ स्टॉप लॉस, और फिर नीचे नीचे के टारगेट्स आएंगे. ठीक है, सो मॉब लेवल कुछ इस तरीके से 17,060 के नीचे 16,925, 16,925 के नीचे 16,800. नाउ एक 100 बात की एक बात ये बताता हूँ, 16,800 इसके नीचे इट्स गेम ओवर. इसके नीचे अब गए काम से, इसके नीचे जो है सीधे फिर 13,975 का विंडो ओपन हो जाएगा. सो कीप द बिगर पिक्चर इन माइंड. और डेली बेस पे कैसे ट्रेड करना है आज तो मैं कल के लिए बता देता हूँ, देन फिर हम एक हफ्ते बाद मिलेंगे. सो इफ यू लुक एट द डेली चार्ट, फ्राइडे का जो प्राइस एक्शन है, तो कल के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है. 17,090 या 17,060, यू कैन चूज बोथ ऑफ देम. So this will be the make or break level for tomorrow. Okay, so let me just put 17,060 only, ताकि वो coincide कर जाएगा वीकली के साथ. So 17,060 80 ये जो है 10-20 पॉइंट, दिस इज द मॉब लेवल फॉर टुमारो. अबाउट दिस market is bullish, and first target will be 17,230, and second target will be 17,000. Second target will be 17,000 what 17,280. ठीक है, नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट कल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों. अगर कल गैप अप हुआ, विच इट शुड हैपन, टुमारो विल बी मोस्ट लाइकली एग्जॉशन गैप. एग्जॉशन गैप का मतलब है कि हम इस गैप को हमने फेड नहीं किया, हमने इसके पहले वाले को भी फेड नहीं किया. मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अगर ऊपर खुलता है, जब तक गैप के ऊपर है, फेड करने की चेष्टा मत करना. ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा, बट कल के दिन फेड करने की चेष्टा जो है करेंगे हम, क्योंकि आई थिंक टुमारो इज सेटिंग अप फॉर अ पॉसिबल एग्जॉशन डे. सो अगर ये गैप अप हमें कम से कम 240 260 समवेयर हियर, प्रेफरेबली आई वांट टू सी नियर द 280 लेवल, 260 280, अगर यहाँ की गैप अप मिली, बड़ी गैप अप, तो द मोमेंट इट स्टार्ट्स टू डू दिस, यानी ये जो ब्रेक ऑफ वी वैप, ब्रेक ऑफ प्राइस स्ट्रक्चर, ठीक है, तुरंत जो है इसे शॉर्ट करना चाहिए. ऊपर में 420 ही का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 17,420, एंड देन आपको 17,060 जो मॉब लेवल है, या 17,140 जो फ्राइडे का इनिशियल हाई है, all these levels can come. So there is a good chance for a gap up action like this, then exhaustion, and then a complete retracement of that gap can happen. So you can benefit tremendously from this move. जैसे ही ये इस लेवल पे आता है, सारे शॉर्ट्स को क्लोज, वॉच करो प्राइस एक्शन को, समय जाने दो. अगर वापस तेजी में कन्वर्ट होता है, वापस से वी वैप वगैरह के ऊपर जाता है, या अगर लॉन्ग ट्राई करना है तो एक और क्विक लॉन्ग भी ट्राई कर सकते हैं. हार्डली 17,000 का स्टॉप लॉस यूज करके प्रॉब्ली वापस 230 280 चला गया तो डबल बेनिफिट हो जाएगा. सो कीप दैट थिंग इन माइंड. नाउ सपोज कोई गैप अप नहीं होता है, बाजार छोटे से फ्लैटिश या थोड़ा सा गैप अप करता है, तब ये ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रेड तभी करना है जब कोई बड़ी गैप अप हो. ओके, सो वी विल बेनिफिट फ्रॉम दैट पॉसिबल एग्जॉशन. अगर छोटा फ्लैटिश खुलता है तो लेवल टू लेवल काम करेंगे, जब तक स्ट्रक्चर मेंटेन है इसे फेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, एंड इफ इट विशेस टू गो हायर, देन वी विल पॉसिबली फेड. ठीक है, सो दैट्स इट. ये इंट्राडे व्यू है. 17,060 के नीचे जैसा मैंने बताया, जो फ्राइडे का गैप है 16,929 और 920, दैट्स द मिनिमम टारगेट. ठीक है, नाउ एक और चीज़ मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ, देन फिर हम बैंक निफ्टी की तरफ चलेंगे. कि इफ़ आई ओपन द प्रोफाइल चार्ट ऑफ entire rally that has started to happen, this is very important to talk to set the perspective. Now you can see market का जो total volume profile है, if you see there is a huge vacuum set over here. यानी सबसे highest volume कहाँ है, 16,500 550. this is the main peak, this is the second peak, this is the third peak, this is the fourth peak. यानी ये जो तीन पीक हैं 15,000
800 से 16,100, ये तो आपके एक मेजर सपोर्ट अब अगले टर्न में बनेंगे। 16,600 ये आपका उसके बाद का मेन एरिया है। नाउ इफ यू सी द प्रोफाइल, वी आर टर्निंग समथिंग लाइक दिस। ओके, सो वी आर टर्निंग समथिंग लाइक दिस, यानी जिस तरीके से हमने 15,000 के समय जाते जाते हम टेपरिंग करते गए, इसी तरीके से हम अब ये 17,400 500 की तरफ जाते हुए टेपरिंग करेंगे। सो कीप एन आई कि मार्केट यहीं से यू टर्न जो है मारने वाला है। सो बी वेरी केयरफुल। ओके, नाउ इफ you see the profile over here, there is a long vacuum that has been created ऑन द फ्यूचर्स 17,173, यानी अगर हम उसको स्पॉट वगैरह में थोड़ा ले लें, एडजस्ट कर लें, तो 17,000 जो 80-90 का जो मॉब लेवल या रफली से जस्ट 17,100 ऑन द स्पॉट, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल लेवल। ओके, वाई? बिकॉज अगर हम हमारे मॉब लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू हुए तो पहले तो आपका बहुत बड़ा वैक्यूम इधर है, इसके बाद आपका वैक्यूम इधर है, और ये फिर 16,600 800 तक की यानी ये पूरा जोन 500 पॉइंट का, इट इज लाइक वैक्यूम। सो बी केयरफुल। ओके, बी केयरफुल ऑन लेवरेज लॉन्ग्स। 17,400 यस डेफिनेटली एक बार ये आना चाहिए, बट वहां से आई थिंक देर विल बी सम प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम स्टेटिस्टिक्स और फ्रॉम प्रोफाइल वॉल्यूम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ वेरी क्विकली चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और फिर हम कुछ स्टॉक्स लेंगे। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले मंथली चार्ट हम देख लेते हैं। सो वी आर एट द अपर एंड ऑफ 37,450। फ्राइडे के दिन हमने जो है बैंक निफ्टी शॉर्ट किया था। क्यों शॉर्ट किया था? बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर हमने पहले कहा था कि 37,450 अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो आखिरी जो इसका हाई है 37,750 के आसपास, यहाँ से इसे फेड करना है। सो मॉर्निंग में एक शॉर्ट ट्रेड हमने यहाँ पे दिया था विच वर्कड ब्यूटीफुली, एंड देन रेस्ट ऑफ द डे कुछ हुआ नहीं। सो इट गॉट ओवर। यहाँ भी एक और शॉर्ट हमने किया था बट यहाँ पे फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ये निकल गया। सो फ्राइडे वॉज अ गुड डे फॉर शॉर्टिंग बैंक निफ्टी। नाउ दिस gives us a picture of something like this. So till bank nifty doesn't sustain above 38,000, I will be bearish on bank nifty for a mean reversion trade towards 36,500 thereabouts. So I think this is the zone to watch out. Okay, we are coming at resistance zone, but actionable trade हम कैसे करेंगे मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। सो नंबर वन, अगर हम वीकली चार्ट को देखें दोस्तों तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है देखने में, बट दिस इज द प्रॉब्लम एरिया। ठीक है, ये जो जोन है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो 37,850 38,000 ये मेजर ट्रबल एरिया है बैंक निफ्टी की तरफ। जिस हिसाब से ये स्विंग चला है, अगर ये बैंक निफ्टी लाइक 38,000 वगैरह को क्रॉस नहीं करता है तो देर इज अ गुड चांस फॉर वन करेक्शन टू हैपन टिल 35,500 और मे बी 35,000, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो वॉच आउट फॉर द रेजिस्टेंस इन दैट जोन। अब एक्शनेबल ट्रेड हम इसमें कैसे बनाएंगे? सो आई थिंक बड़ा ही सिंपल है। अगर मैं वीकली पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जब तक हम 37,880 या रफली से 38,000 से, यहाँ से हमने लास्ट टाइम गैप डाउन करके इसे शुरू किया था, यहाँ पे गैप है, यहाँ से हमने शुरू किया था, इस गैप को हमने फिल कर लिया है फ्राइडे के दिन, और इसीलिए हमने शॉर्ट किया था क्योंकि वी आर कमिंग देयर आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सो देर विल बी सम हैमरिंग, सो दैट इज हैपेंड, बट स्टिल ट्रेंड अभी भी तेजी में है, ट्रेंड हैज नॉट चेंज्ड। ओके, सो आई थिंक for bank nifty watch out for roughly I would say 37,800 to 38,000, that is the level to watch out for, 37,880 38,000। ओके, सो ये जो क्लस्टर है दोस्तों ये सप्लाई क्लस्टर है बहुत ही स्ट्रांग वाला, जो कि यहाँ भी सेटअप हो सकता है। यहाँ आप देखेंगे तो एक दिन में ये गिरावट की शुरुआत नहीं हुई थी, काफी दिन तक ये रेंज में चला था, इट मेड अ बेयर फ्लैग स्ट्रक्चर एंड देन with a gap down activity it started the momentum based downside move। यहाँ भी हो सकता है ये ऐसा ही कुछ करेगी, ऊपर में 37,880 यानी रफली 38,000 से लेके नीचे में 37,300 तक ये एक हो सकता है रेंज बनाए। ओके, सो वॉच आउट फॉर दिस एक्टिविटी, ये ट्रबल जोन है, बी एक्सट्रीमली केयरफुल। ओके, एंड आई एक्सपेक्ट वन क्रैक कमिंग फ्रॉम दिस एरिया ऑल द वे टिल 35,400, ये मेरा प्रोजेक्शन है। 38 के ऊपर ऑल बेट्स आर ऑफ, बिकॉज इन दैट केस हमें कोई भी शॉर्टिंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दैट वुड मीन दैट समथिंग हैज चेंज्ड।
एंड प्रॉब्ली यू मे नेवर नो, हो सकता है फिर 38,500 तक भी जाए, या हो सकता है इट कैन गो ऑल द वे टिल लाइक 40,000 एंड कंप्लीट दिस एंटायर बैक टू बैक स्ट्रक्चरल मूव इस तरीके से, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो इसीलिए ट्रेडिंग रेंज में चलो, कोई बायस लेके मत चलो, नहीं तो फिर फंस सकते हैं. ठीक है. सो हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, आई वुड लाइक टू जस्ट सिंपली पुट द मॉब लेवल एक्सेट्रा. सो मॉब लेवल की अगर हम बात करें तो इस वीक में 37,880 मैं इसे मॉब लेवल रखना पसंद करूंगा. वीकली मॉब लेवल 37,880. अबव दिस it can definitely inch towards 38,250 and spike 38,750. नीचे में 37,880 के नीचे हम मंदी में रहेंगे. एक पेंडिंग गैप सबसे पहले 36,800 दिख रहा है, तो ये पहला टारगेट हो जाएगा. दूसरा टारगेट हो जाएगा 36,000 का, जो कि राउंड नंबर है. एंड तीसरा टारगेट हो जाएगा 35,600 का. ठीक है. आउट ऑफ विच आई थिंक अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, अ रेंज विल बी समवेयर बिटवीन से 38,000 टू 36.5. ठीक है. इस तरीके से फ्राइडे को आरबीआई पॉलिसी है, बट आई एम नॉट देयर इन दिस एंटायर वीक, सो आई डोंट नो हाउ थिंग्स विल शेप अप. सो कीप एन आई. फ्राइडे का दिन काफी इंपॉर्टेंट है. आई थिंक वी आर going to make a range till Friday with both intraday long and short, and then Friday will be the deciding day, what happens. So yeah, so that's it on Bank Nifty 37,880. Watch out for this level, and on the lower side 36,000 major support, or you can say 36,800. So these two are practical levels for this week. These two are extended levels on the upper and lower zones. So with this, I think I should wind up. I have taken all the asset classes and explained you everything. अगर हम simple chart perspective से देखें तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस को ब्रीच करने में कामयाब रहा है इस तरीके से. ओके. सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू कीप एन आई. बट एक और एंगल से इट इज एट रेजिस्टेंस. ओके. नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस चार्ट इज बैंक निफ्टी in the last 6 months has neither broken below this bottom nor it has taken above this. So structurally wise, Bank Nifty could be in some sort of a complicated structure इन दिस एंटायर थिंग. यानी ये एक वेव था, ये दूसरा था, और अभी ये विद इन सम थर्ड वेव वी आर जस्ट डूइंग टाइम पास. सो द एक्चुअल थर्ड वेव हैज नॉट इवन स्टार्टेड. वेदर इट स्टार्ट्स फॉर अ ब्रूटल डाउनसाइड और अ न्यू हाई, दैट इज येट टू बी सीन. एंड उसके क्लूज हमें आने वाले 5 से 7 दिनों में मिल जाएंगे. ठीक है. सो विद दिस लेट्स वाइंड अप, आई वुड से, बिकॉज ऑलरेडी 1 घंटा समय हो चुका है. बट कुछ अगर स्टॉक्स क्वेरी हैं तो हम ले सकते हैं. एंड देन आई वुड लाइक टू वाइंड अप बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम टुमारो. सो लेट्स सी क्या कुछ मैसेजेस देख लेते हैं ग्रुप में. काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं. विकल्प इज डिसअपॉइंटिंग नाउ डेज, डिसअपॉइंटिंग सिंस 8 years. जय माता दी. Then you have, as per market profile, 17,388 is ceiling. Okay, fine. चलो, let's take some stock queries and then let's wind up. चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतने अच्छे एनालिसिस का कोई विकल्प नहीं है यूट्यूब पे. ठीक है. सो चैनल को सब्सक्राइब शेयर वगैरह करते रहिए. लाइक डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है. और टेलीग्राम ग्रुप, फ्री ग्रुप एंड इंस्टाग्राम के लिंक है, सो यू कैन connect with us over there. And all those who are interested in joining for the August 13th and 14th batch, you can WhatsApp and register yourself. Okay, let's take some queries. So मिस्टर वेदांता को लेते हैं. सबसे पहले लेते हैं कि वेदांता क्या कह रहा है. नाउ the setup which I have done for live streaming right now will help us to get a bird's eye view of all the time frames. So पहले जो हम लाइव स्ट्रीम करते थे एक ही टाइम फ्रेम देखते थे. Now you can yourself see, learn and understand everything in a single shot. So
व्हाट इज द बार चार्ट सजेस्टिंग ओवर हियर? सबसे पहले मैंने लास्ट वीक आपको कहा था कि इसको ट्रेल कर देना 240 45 पे, एंड वेट करिए अगर ऊपर के टारगेट्स आते हैं तो वेदांता इज स्टिल ट्रेडिंग इन दिस बिग रेंज सिंगल रेंज कैंडल, एंड आई थिंक इसका हाई जो है ये टेस्ट कर सकता है. सो आई थिंक 276 265 शुड कम इन वेदांता. वीकली चार्ट में थोड़ा सा ट्रबल है. ओके, सो अगर वेदांता एक बार पिछले वीक के हाई के ऊपर चले तो डेफिनेटली 265 से 280 के लेवल्स जो है आपको देखने मिल सकते हैं. सो the level to watch is your last week high, so that level is I think 265. So watch out for 265 and 245 on the lower side. About 265 definitely, 280 290 295, these levels will come. So that's it. टाटा पावर पे क्वेरी है ऐसी दोस्त. टाटा पावर पे शॉर्ट टर्म कुछ तो मैं आपको बता ही सकता हूँ, बट इन सारे स्टॉक्स पे जो है मैंने बहुत पहले वार्निंग दे दी थी. ओके, जितने भी रेगुलर फॉलोअर्स हैं, सो वी आर ऑलरेडी आउट फ्रॉम ऑल दिस नॉनसेंस. सो ये सारा खेल खत्म हो चुका है. सो राइट नाउ इट केम नियर 236 टू check the supply was there, again big fall. So I think टाटा पावर में अगर कोई लॉन्ग ट्रेड देखना है तो एक तो ये है कि आप 208 के आसपास बाय करो, विच इज द 233 मूविंग एवरेज एज वेल एज द मीडियन लाइन. सो यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ आपको जो एक सपोर्ट मिल सकता है 201 के स्टॉप लॉस के साथ. तो 208 पे बाय करके 200 का एक स्टॉप लॉस, ये एक ट्रेड है फॉर अ पॉसिबल मूव टुवर्ड्स 235 टू 40. दूसरा कोई ट्रेड ही नहीं है यार इसमें. दीज आर नॉट, देखो प्राइस का काम है मूव करना, ये तो चल जाएगा, बट कोई ट्रस्टेबल मूव नहीं है, यानी आप भरोसा नहीं कर सकते इसकी चाल पे. ठीक है, दैट इज द होल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड. नाउ ऑल्सो वन रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज अपने क्वेरी को एलोबरेट तरीके से लिखिए. डोंट मेंशन द स्टॉक, व्हाट इज योर क्वेरी, यू मेंशन दैट, और एल्स आई कांट टेक दैट थिंग. ओके, so Tata Power bearish engulfing candle over here about 235 इस वीक में, about 235 इस वीक में you can see some more upside still, say 250 sort of a level. कमिंग्स इंडिया ऑलरेडी इस पे बुलिश व्यू में पिछले 10 दिन में 2 बार रख चुका हूँ, और स्टॉक बहुत भागा भी है. एंड एज यू कैन सी स्टॉक हैज गिवन अ फ्रेश ब्रेकआउट विद अ गैप अप मूव, और 1300 का इस पे टारगेट है अपना, और मैंने इस स्टॉक पे हाई कन्विक्शन वाइज सजेस्ट किया है कि इसे आप रखिए. 1300 के आसपास हम देखेंगे. ठीक है, सो ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स नियर 1280 1300 लेवल्स ऑन ऑल द टाइम फ्रेम्स. स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स द प्रीवियस ऑल टाइम हाई. 1266 has already been met. I think it should break towards 1280 and 1300 levels. Profit booking जरूर करना है, भूलना नहीं है. नेक्स्ट है इंडियन बैंक फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट, बट आपने कुछ बताया नहीं. अपनी क्वेरी पूछो, ये मत पूछो कि ये कहाँ जाएगा, क्या आपकी क्वेरी क्या है वो पूछो, नहीं तो फिर आप फायदा नहीं उठा रहे हो मेरा. सी 176 का लेवल जो है दोस्त, ये जब ब्रेक होगा तभी इसमें कोई फ्यूचर मूव पॉसिबल है. एज ऑफ नाउ आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अगर ये स्टॉक थोड़ा दिन और करेक्शन करता है बट 160 को नहीं तोड़ता है, 160 को नहीं तोड़ता है, तो ये स्टॉक 200 चल जाएगा. ठीक है, बस जब तक आप अपनी क्वेरी प्रिसाइज नहीं पूछोगे मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा. वाई इज योर कोर्स, ये देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेरी है. वाई इज योर कोर्स सो कॉस्टली? मेरा कोर्स, पहली बात तो कोर्स नहीं उसे कहते हैं. ठीक है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ मेंटरिंग. It appears to you costly because you do not understand that it's not a course. Right time to sell, मेरा कोर्स देखो 5 लाख का है ना. इंडियन बैंक हो चुका है, वेदांता फॉर लॉन्ग टर्म कैन बी. देखो लॉन्ग टर्म छोड़ो यार, पहले टारगेट दी लो हैंगिंग फ्रूट्स. पहले आप इनिशियली 10-20% तो देखो, उतना तो मैनेज करना सीखो पहले. नौकरी.com पे पहला ही व्यू है जो बता चुका हूँ. डॉक्टर रेड्डीज पे शॉर्ट टर्म व्यू है. लेट्स सी, डॉक्टर रेड्डीज लैब. डॉक्टर रेड्डीज लैब देखो बेरिश है दोस्त. डॉक्टर रेड्डीज लैब पे अगर आपको याद होगा तो इसमें हमने पहले यहाँ पे शॉर्ट व्यू यहाँ पे रिकमेंड किया था कि 4500 ब्रेक नहीं करता है तो गो शॉर्ट इन दिस, इट्स अ बेरिश काउंटर. देन आफ्टर सम डेज इट ब्रोक हायर. नाउ जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं आपको पता है कि इस टाइप के सेटअप को मैं क्या कहता हूँ, कैसे मैं समझाता हूँ. सो इफ यू आर one of our student, then you should have sold on this candle keeping this as a high, and then the rest is history. So इस समय ये बेरिश काउंटर है और ये और नीचे जा सकता है. इस समय इसमें कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं है.
मेरे ख्याल से, ठीक है। आई थिंक 3911 शुड कम वेरी वेरी सून। नेक्स्ट क्वेरी है IEX। नाउ दीज आर टिपिकल रिटेल counters, तो there is no hope for these counters. Yes, in the fag stage of the move even they will start to pop up. अगर आप इसमें लॉन्ग हैं तो आप जो है 152 का या लमसम कहें तो 150 रुपए की आप जो है स्टॉप लॉस इसमें आप रख सकते हैं। एंड मे बी अगर निफ्टी मेंटेन रहा तो 177 एक बार आपको इसमें दिख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टाइम टू सेल अंबुजा सीमेंट। देखो अंबुजा सीमेंट पे एक्सप्लेनेशन लास्ट वीक दे चुका हूँ कि ये स्टॉक में बड़ी मूव कुछ आने वाली है, तो मैंने एक ही ट्रेड रिकमेंड किया कि बाय करके स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो और 400 जाएगा तब रिव्यू लेंगे। सो लास्ट वीक आई हैव गिवन अ बाय ट्रेड and very well it is slowly going higher. Now if you are a buyer, keep a stop loss of 350 in cash. If you want to, if you're trading in FNO etc, keep a stop loss of 362. Okay, not more than that, 362 is enough. Target is 400 bare minimum, ठीक है। कोल इंडिया एंटर्ड फॉर शॉर्ट टर्म गेन एट ऑफ 5 to 7%। अगली क्वेरी है कोल इंडिया। सो कोल इंडिया में देर इज अ क्वेरी दैट शॉर्ट टर्म गेन ऑफ 5%। ओके, सो कोल इंडिया में दोस्त अगर आप पहले देखे होते यूट्यूब सेशंस, सो पिछले कई दिनों से इसमें मैंने बाइंग की सलाह दी थी और 213 का टारगेट था जो कि लगभग हो चुका है। सो वॉच आउट फॉर प्रॉफिट बुकिंग नियर 215 218। वी विल बी heading towards the third high over there. So profit booking, okay, no chasing, no greedy move, nothing, सीधे profit booking and next trade पे हम मूव करेंगे, ठीक है। सो कोल इंडिया में ऑलरेडी अच्छी रिकमेंडेशन थी, इट हैज़ वर्कड ऑल्सो। नेक्स्ट जो है कैन वी शॉर्ट एक्साइड इंडस्ट्रीज। देखो एक्साइड एंड ऑल दीज आर बिग बेरिश काउंटर्स, बट ये बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, अभी कम बैक हो रहा है। एंड राइट नाउ देर इज नो शॉर्ट ट्रेड। ओके, वाई नो शॉर्ट ट्रेड? क्योंकि पहले इसने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, सो आई डोंट वांट टू टेक अ चांस ओवर देयर। सेकेंडली, लेट इट स्पेंड सम टाइम। ओके, बाजार अभी तेजी में है, इस स्टॉक को पिछले स्विंग हाई के पास थोड़ा समय बिताने दो, 2-4 दिन, और अगर ये ऐसा करता है तो फिर इसके नीचे यानी 158 के नीचे की जब क्लोजिंग आती है तो ही फिर आप शॉर्ट करिएगा। इसके ऊपर जो भी हाई है ये आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपको भी पता है, न्यू लो की तरफ, चैनल बॉटम 120, दैट विल बी द टारगेट। नाउ दिस स्टॉक माइट fake a up move till 171. Second shorting opportunity will be somewhere here, somewhere near the previous supply zone. So we will see कहाँ से इसमें टर्न होता है। See, this is our approach, this is what I teach कि पहले तो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस खोलो, फिर वहाँ से ट्रेंड चेंज कैसे हो रहा है उस चीज़ को ऑब्जर्व करो, और जब तुम्हें श्योरिटी लगे, उसके साइंस दिखे, तब हमला करो। दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस इज। नेक्स्ट, टाटा पावर फॉर शॉर्टिंग। नहीं 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 नहीं, ये सब ट्रिकी स्टॉक है, आप लोग यही नहीं समझ रहे हो। ये सब जो है ना ऑपरेटर वाले स्टॉक है, इनकी चाल अलग होती है। कैन वी बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 5? अरे भैया आप बहुत लेट हो गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने कहाँ से बाय कराया है, और लास्ट वीक बहुत लोग मेरे को शॉर्टिंग के लिए बोल रहे थे, तो मैंने सबको मना किया। ओके, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 570 का टारगेट है, 525 एक पहला टारगेट था विच वाज दिस, एंड देन 570 इज बोनस। सो राइट नाउ ऑन फ्राइडे इट हैज मेड सम बेरिश एंगल्फिंग, बट स्टिल जब तक ये स्टॉक 516 के नीचे नहीं जाता है, इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। यू कैन कैरी दिस ट्रेड एंड लेट्स सी। प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो 550 के आसपास है, वहां पे सारे प्रॉफिट्स को बुक करके छोड़ देना है स्टॉक को। शॉर्टिंग के लिए अभी नहीं, गिर सकता है 516 तक, बट नो शॉर्टिंग, उसे शॉर्टिंग नहीं कहते, अभी ये एक अप ट्रेंड का हिस्सा है। सेल की बात करें, सेल, लेट्स टॉक अबाउट सेल। तो ये स्टॉक कई महीनों से डाउन ट्रेंड में है, मुझे इसका अप ट्रेंड अभी नहीं दिख रहा है, बट क्योंकि एक मोमेंटम वाली तेजी चल रही है, तो दीज स्टॉक्स, द डेड काउंटर्स, द काउंटर्स विच मेड द रिटेल ट्रेडर्स डेड, दे विल स्टार्ट टू कम लाइव, ठीक है। द डेड विल राइज फ्रॉम देयर कॉफिन्स। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे खेल है, एंड द डेड विल राइज इन फ्रॉम देयर कॉफिन्स ओनली टू ट्रैप another set of retailers, and they will again go to their coffins again. सिंपल मतलब ये है कि अभी इसका गैप जो है 82 का, ये 82 पे जाएगा और फिर वहां से देखते हैं क्या होता है। सो 82 इज द इमीडिएट टारगेट। अगर आप लॉन्ग हैं
तो उस लेवल के आसपास देखिए, वहाँ पे कुछ ट्रेल टू कॉस्ट वगैरह आप कर सकते हो। अगर बाजार वहाँ से टूट जाता है निफ्टी वगैरह तो फिर एग्जिट कर सकते हो। 82 and then 91, these are two locations to watch out for in this stock. IOC for shorting, IOC for shorting, Indian Oil Corp. सी IOC फॉर शॉर्टिंग, क्यों शॉर्टिंग करना है? कोई ना लोकेशन है ना कुछ है, नथिंग। इनफैक्ट इट इज गोइंग टू राइज टिल 76। कैन वी बाय टाटा मोटर्स फॉर 10%? यस ऑफ कोर्स। टाटा मोटर्स जो है इसमें ऑलरेडी एक लॉन्ग कैश में सजेस्ट किया हुआ है। अभी मैंने कहा था कि एक दो दिन बाद वापस बताऊंगा, सो सेम व्यू है, बाय ऑन डिप करो। बट एक डेवलपमेंट है कि 420 के नीचे इस स्टॉक को निकाल देना है, बिल्कुल चांस नहीं लेना है। 420 के नीचे बिल्कुल चांस नहीं लेना है। सो दिस इज द न्यू डेवलपमेंट, इसीलिए मैंने कहा था कि एक दो दिन का समय दो, ठीक है। सो 420 के नीचे नहीं। ओके, सो टाटा मोटर्स रिलाइज हेविली ऑन चाइना, एंड चाइना इस समय कुछ तो, चाइना इज अप टू समथिंग, so we don't want to take that chance. Okay, so if China is indeed up to something, what will happen is कि टाटा मोटर्स का, सॉरी मैंने टाटा स्टील का, टाटा मोटर्स का ये जो एक रेंज जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये अभी एक्यूमुलेशन था। बट यदि चाइना का कुछ गड़बड़ होता है, सो व्हाट विल हैपन इज एक पॉपअप होगा एंड देन ड्रॉप। अगर ये साइन इस तरीके से दिख गया आपको, उसी दिन इसमें से जो भी लॉन्ग से सब निकाल देना, क्योंकि दिस इज अ वेरी बैड साइन। ओके, एंड अगेन वी माइट सी टाटा मोटर्स कमिंग नियर 400 काइंड ऑफ लेवल्स। एज ऑफ नाउ 420 पे सारे लॉन्ग्स को ट्रेल कर दीजिए। ऊपर में 465 475 का विंडो ओपन है, वहां जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है नवकार कॉरपोरेशन, नवकार कॉरपोरेशन, राइट? हाँ। सो व्हाट इज द क्वेरी? द क्वेरी इज नौकार कॉर्प ऑलरेडी लॉन्ग, व्हाट यू सजेस्ट, होल्ड और ये? निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। देखो जिस टाइप का स्टॉक, देखो स्टॉक है एक चालू, ठीक है, दूसरा स्टॉक चल चुका है, तीसरा स्टॉक उड़ चुका है। ओके, बैक टू बैक हमेशा प्रॉफिट बुक। जब भी ये वाइड कैंडल्स दिखें प्रीवियस स्विंग हाई के पास लॉट ऑफ वॉल्यूम के साथ, तो ऐसे में दो ही चीज होता है। पहली बात, या तो स्टॉक यही बिहेवियर करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। तो जैसे ये स्टॉक 20 रुपए का था, आज 85 पे ट्रेड कर रहा है। बट क्या 20 रुपए से बाय करके ये जो बीच बीच में ड्रॉडाउन्स आते हैं इतने लंबे लंबे, क्या आप उसको झेलने की ताकत रखते हो? मैक्सिमम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि ह्यूमनली वो पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप इन्वेस्टर ना हो। क्योंकि इन्वेस्टर भाव पे नहीं खेलता, बिजनेस पे खेलता है, तो वो प्राइस को देखता ही नहीं है। दैट इज वाई वो झेल सकता है उसको, ठीक है। ट्रेडर जो होते हैं ये भाव पे खेलते हैं। ओके, सो अगर आप भाव के खिलाड़ी हो तो इस स्टॉक में और कोई भी अपसाइड आता है तो निकल जाओ, प्रॉफिट बुक करो। इस टाइप की जब गिरावट आएगी, आज नहीं तो कल नहीं तो अगले महीने, तब वापस से बाय करेंगे। अंडरस्टैंडिंग? एंड वी विल पार्टिसिपेट इन दिस बुल रन ऑफ दिस स्टॉक। This is the simple approach which we as a average traders should follow. Remain conservative in our approach and ride the markets. ठीक है। वोखार्ड फार्मा 214 पे बाई है। नेक्स्ट क्वेरी है वोखार्ड फार्मा। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, दैट इज द ओनली रिक्वेस्ट, बिकॉज ऑल फ्री। सो आपका सपोर्ट जो है चाहिए यूट्यूब के एल्गोरिथम से बचने के लिए। सो वो कार्ड फार्मा 214 पे बाई किया। सी दीज आर ऑल अगेन डेड काउंटर्स, बट इन सम स्टेज ऑफ द बुल मार्केट इवन दे विल राइज फ्रॉम देयर ओन एशेस। अभी अगर आपने बाई किया है दोस्त, तो एक ही चीज़ मैं बताता हूँ कि आप 204 रुपये पे फुल एंड फाइनल स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर स्टॉप लॉस आपका सेव है तो हो सकता है कि इसमें भी, क्योंकि ये स्टॉक जो है हिस्टोरिकली हम लोग इसे 10-15 साल से देख रहे हैं, जब ये चलना शुरू करता है इट्स अ किलर काउंटर, इट कैन डू एनीथिंग ऑन अपसाइड, ठीक है। सो दिस लुक्स टू मी अ डिसेंट लेवल, बट ये मेरा तरीका ही नहीं है स्टॉक्स को खेलने का। सो अगर आपने बाई किया है, कीप अ स्टॉप लॉस। 240 आता है तो आप मुझे बताइए, फिर हम आगे देखेंगे, क्योंकि 240 आने से एक संकेत मिलेगा कि स्टॉक में सम लाइफ हैज कम, सो वी विल देन इवेल्युएट फ्रेश। ट्राइडेंट फॉर लॉन्ग्स, देखो ट्राइडेंट वाइडेंट इन सब स्टॉक से निकल जाओ दोस्त, कुछ नहीं रखा इनमें, ठीक है। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, कई महीनों से कह रहा हूँ, ठीक है। सो दीज आर ऑल गॉन, इनका टॉप ये बन चुका है, अब ये 7 जन्म तक नहीं आएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है विनाती ऑर्गेनिक्स। देर आर लॉट ऑफ क्वेरीज टुडे। लेट मी सी विनाती ऑर्गेनिक्स।
सी विनती ऑर्गेनिक्स इस समय दोस्त बिग वॉल्यूम बिग वाइड रेंज कैंडल दैट कॉल्स फॉर एन एग्जिट एज पर माई स्टाइल, सो वी डोंट होल्ड स्टॉक, इट्स डन एंड डस्टेड, सो यू शुड एग्जिट। आने वाले एक दो महीने में अगर ये स्टॉक 2000 पे दिखेगा तो 1900 के स्टॉप लॉस से वापस बाय करेंगे, वापस 2350 पे बुक करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेरी है दैट इज टीसीएस। टीसीएस पे क्वेरी है, बॉट एट व्हाट, टीसीएस पे बाय किया है 3880 पे, कितने पे, 3880 पे। अरे भैया 3880 पे तो मैं एग्जिट करवा रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये किस लाइन में आ गए आप। तो चलो कोई बात नहीं, अभी क्या करेंगे, दोस्त आपका प्राइस बहुत ऊपर है, ठीक है, तो इसे मुझे जो है पैराग्लाइडिंग कुछ कराना पड़ेगा या इसे मुझे ऊपर ले जाके उड़ाना होगा। तो एज ऑफ नाउ देखो ठीक है, स्टॉक आई होप कि आपका प्राइस आ जाए, ओके। बट शॉर्ट टर्म में आई थिंक 3400 बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, तो प्रथम श्रेणी में तो मुझे लगता है कि स्टॉक पहले तो एक छलांग लगाएगा 3400 के आसपास, उसके पश्चात ही थोड़ा सा पुल बैक करेगा और फिर देखते हैं क्या होता है। अगर ये चल पड़ा 300-400 को, उसके बाद अगर काट दिया, देन आई थिंक जो है 3800 जो है आएगा, ठीक है, भविष्य काल में ही आएगा। एज ऑफ नाउ नो, सो दैट्स द थिंग, या दैट्स द थिंग। अगर 3280 है तो 3400 के भाव पे बुक करना सही है। मार्केट इज इन कंफ्यूजन दैट इज वाई लॉट्स ऑफ क्वेरीज। मार्केट कभी दोस्त कंफ्यूजन में नहीं रहता, हम रहते हैं। मार्केट को क्या है, उसको क्या कमाना है अपने आप से, है कि नहीं। हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, देखो HUL में एक बहुत ही सॉलिड रैली जो है चल रही है। अब HUL की मैं एक बात बताता हूँ, HUL में अगर जो लॉन्ग टर्म फॉलोअर्स हैं जो एक दो साल से आप देख रहे हो, तो कोविड की बात करते हैं, 2020 में कोविड आया, इसके बाद मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि जो है एक लेटर स्टेज ऑफ द बुल मार्केट में सबसे लास्ट में क्या भागता है पता है, FMCG, यानी बाय दैट टाइम द इन्फ्लेशन रीचेस डाउन। और FMCG कंपनीज जो है ना, क्यों ITC भागा जब हमने 200 से लॉन्ग कराया, ओके, ब्रिटानिया भागा, ये HUL एंड ऑल रैन अप, बिकॉज जब इन्फ्लेशनरी साइकिल आता है तो FMCG एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सारे इन्फ्लेशन को कस्टमर तक पास ऑन कर सकता है। एक 10 रुपए का बिस्किट अगर 11 रुपए में बिकेगा तो आपको कुछ नहीं होगा, इट इज इनइलास्टिक फॉर यू, बट कंपनी के लिए 10% का रेवेन्यू ग्रोथ हो जाता है, करेक्ट। सो दैट इज वाई इन दैट साइकिल दे रैली। नाउ ये जो स्टॉक है, इसको हमने हर इस चैनल बॉटम पे इन्वेस्टर के लिए बाइंग कहा था, डे टू डे नहीं, इन्वेस्टर के लिए, और मैंने 3200 का टारगेट दिया था। अभी ये गया था लगभग 2800, यहाँ पे इसकी एग्जिट हुई, अगेन इट गेम हियर पैनिक लेवल, 1900 पे बाय करने का है, 2000 पे बाय करने को कहा है, एंड देन डिलीवरी वाले देखो आज 2600 पे बैठे हैं। सो जो स्टॉक को हम ये कहते हैं कि देखो ये इन्वेस्टर वाला काउंटर है, तो इसको खेलने का तरीका अलग होता है, ओके। आप इन्वेस्ट करिए लेवल्स पे, स्टॉप लॉस लगाओ एंड वेट करिए, तब जाके इसमें पैसा बनेगा। डे टू डे करोगे तो फिर टॉस्ट अराउंड हो जाओगे। एज ऑफ नाउ जब तक ये स्टॉक 2500 होल्डिंग है, इसे और होल्ड करो, आई थिंक 3200 इस चाल में ये करेगा। इट माइट टेक कपल ऑफ 1-2 months, बट आई थिंक 3200 शुड कम इन दिस साइकिल। राइट नाउ आप ट्रेल कीजिए 2500 पे, आई थिंक दैट्स अ गुड ट्रेलिंग लेवल। सो दैट्स इट, 1 घंटा 20 मिनट का लाइव सेशन हो चुका है, एंड अगर हम घड़ी की बात करें तो समय कुछ इस समय हो रहा है 11:30। लेट्स टेक कपल ऑफ क्वेरीज और फिर वाइंड अप करते हैं दोस्तों, आई थिंक बहुत डिले हो रहा है। REC में 128 पे लॉन्ग है, क्या करना चाहिए। REC, लेट अस सी, REC, REC लिमिटेड, सी REC लिमिटेड अगेन एनर्जी प्ले, पावर प्ले है, सो एज ऑफ नाउ इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, आई थिंक इट्स सेटिंग अप फॉर अ वेरी नाइस ब्रेकआउट। सो आपका कहाँ बाय है, 128, बहुत ऊपर क्यों बाय कर लेते हो आप लोग, नीचे बाय किया करो। ये अच्छा देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस 122 वाला सही था। So in this stock, see your buying is very high, and the stock is also at resistance. But I would suggest take a risk of 10 points. 120 पे stop loss रखिए, क्योंकि स्टॉक में एक काफ़ी बढ़िया चार्ट सेटअप है for a potential inverse head and shoulder breakout. So I think it's worth taking this shot. Okay, and later on, if this breaks out,
you can end up seeing this stock at least at 145 and 150. तो वहाँ पे फिर हम इसे इवेल्युएट करेंगे। अभी ये जो बॉटम था 120 वाला, आई थिंक ये सेफ है। तो आप देखिए अगर कितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप जजमेंट ले सकते हैं। ओवरऑल इस स्टॉक पे मेरा रिकमेंडेशन होगा कि कोई गिरावट भी आता है तो 122-23 पे बाय करना चाहिए। 118 के नीचे थोड़ा सा, 120 118 के नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे, एंड 150 का टारगेट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो दैट्स थिंग। इसी तरीके से एनटीपीसी भी चेक कर लेते हैं, एनटीपीसी लिमिटेड। सो अगेन एनर्जी प्ले, पावर प्ले, वेरी नाइस, फ्रेश ब्रेकआउट है, इस पे मैं फ्रेश लॉन्ग भी दे सकता हूँ। लाइक वी कैन बाय एनी डिप दैट कम्स टू 150 इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस हो जाएगा दोस्त 144। ओके, टारगेट पुराना रेजिस्टेंस जो है 160, दैट शुड बी इमीडिएट टारगेट। सो दिस इज अ गुड प्ले, लो लो हैंगिंग फ्रूट वाला ये ट्रेड है। ओके, यानी रिस्क कम है, रिवॉर्ड सही है, स्ट्रक्चर सही है, कंपनी सही है। सो इट्स अ प्रोफेशनल स्टॉक, प्रोफेशनल ये एक सेटअप है, वेरी नाइस। और हाँ, बड़ा ट्रेड भी सेटअप हो सकता है, बट फिलहाल हम सिर्फ 160 का टारगेट करेंगे। टीसीएस हो चुका है, आरईसी हो चुका है, एलएनटी है 1580 पे, बहुत ही शानदार। एलएनटी टॉप पिक है पूरे इस कैटेगरी का। और एक और चीज मैं बता दूं कि एलएनटी अब 2023 के अंत में देर आर होल बंच ऑफ स्टॉक्स, जो मैं कभी किसी दिन इस पे करेंगे क्लास कि कौन से सेक्टर वाले स्टॉक को 2023 के अक्टूबर के बाद से, यानी 2000 दिवाली 2023 ऑनवर्ड्स, कौन से सेक्टर को कब और कैसे प्ले किया जाएगा। ओके, क्यों कह रहा हूँ ये उस टाइम मैं बताऊंगा। सो सो ग्रेट टाइम वो होने वाला है, सेक्टोरली सही तरीके से चलेंगे तो ग्रेट टाइम होगा। और एनीवेज एलएनटी देखिए दोस्त, 1860 जो है इसका एक शॉर्ट टर्म में टारगेट है, विच आई थिंक ये कल परसों में हो जाना चाहिए। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग फिलहाल के लिए करिए, स्टॉक बहुत भाग चुका है, कोई अच्छी करेक्शन आएगी तो हम इसे बिंदास बाय करेंगे। सो एलएनटी, आई एम वेरी बुलिश ऑन एलएनटी। 1730 को ये काट चुका है ना, व्हाई आई एम वेरी बुलिश, लुक एट द लॉन्ग टर्म चार्ट, फैंटास्टिक, दिस इज ब्रिलियंट। So you had a consecutive, say, 6-7 months of a channelized correction. You came near the previous all-time high. You went beneath that level to check the supply demand, inventory, and you found that there is a lot of demand for this stock, and this is a boom. So you have retraced, lot of decline in just single candle. So this, you know, puts our conviction in the counter for medium to long term perspective. So we are very bullish. So किसी भी चार्ट वाइज किसी भी बड़े ट्रेंड को प्ले करना, ये अपने आप में एक कला है। तो सिर्फ वो चार्ट बुलिश है इसलिए आप उसको प्ले करोगे, ऐसा नहीं है। पीस बाय पीस प्ले करना है इन सारी चीजों को। सो दैट इज वाई एलएनटी इज वेरी बुलिश। 1730 इज नाउ our main area of buying, so we will wait at that time for fresh 1860 के आसपास, 1860 1880 you can book for now. Next query and let's wind up, I think बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। सो शैले होटल, देखो ये होटल होटल जो है इनका कुछ नहीं होना है, इनमें से प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हो, दैट्स इट। ओके, दे हैव नॉट मैनेज टू क्रॉस द प्री कोविड हाइज ऑल्सो, दैट इज सॉर्ट ऑफ यू नो लैगिंग एक्टिविटी। सो इसमें से बाहर निकलो, ये कोई अच्छे काउंटर्स नहीं है। एनएमडीसी, एनएमडीसी एक आखिरी स्टॉक लेते हैं। एनएमडीसी सेल ऑल दीज डेड काउंटर्स, दे माइट कम टू लाइफ। सो जो भी रिसेंट बॉटम है आप इनमें ट्रेल कीजिए, और इमीडिएटली जो भी इनका लाइक 65 डे मूविंग एवरेज है उस पर आप एम कर सकते हो। सो आप स्टॉप लॉस लगा के वेट कीजिए, 118 अगर आता है तो डेफिनेटली वापस से रिव्यू करेंगे, या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना या ट्रेल टू कॉस्ट कर देना। ठीक है, टाटा स्टील, and then we are winding up. Tata Steel is again similar concept, metals hai, rally hoga, so NMDC, SAIL, your Vedanta, Jindal, and all these guys. So Tata Steel has again come near the 233 moving average. Okay, and we discussed last week how copper is turning bullish, how the, if you guys remember, हमने एक खास चीज पे नजर डाली थी, and that was the CRB index, right? Very CRB index.
So if I open the chart of the CRB index, so if you can see, this is the long-term chart of CRB index, which is the Reuters Commodities Index. So it came, where did it come? It came at a very strong demand zone in the long-term chart. Okay, so यहाँ पे जो है ये एक बुलिश रिवर्सल कर रहा था, लास्ट वीक में इसने ब्रेकआउट दिया. दैट इज वाई कॉपर पे हम बुलिश थे. दैट इज वाई आई सेड कि मेटल स्टॉक्स वगैरह पे ध्यान देना, इनमें जो है तेजी आएगी, गोल्ड में, सिल्वर में इसीलिए तेजी आएगी, यू नो. सो दैट वाज द थिंग. ऑल राइट, लेट्स वाइंड अप. क्वेरी खत्म नहीं हो रही है, बट टाइम इज ओवर. आई हैव टेकन अ वेरी लॉन्ग लाइव सेशन, 1 घंटा 30 मिनट. सो सी यू गाइज नेक्स्ट वीकेंड. And all those who are interested, you can WhatsApp and join for the next training, which is scheduled on August 13th and 14th. Wish you all the best. I hope you enjoy for the coming week. I will see you guys next weekend with the next live session. ठीक है, take care. Good night. Jai Mata Di.